Hello students, how are you all? I hope you all are fine and staying home safely. So students, myself your computer and GK teachers from LPM Public School, which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. So students, today we are going to do the revision on topic 5 and topic 4 and topic 8. Topic 4 is all about honeybees. Topic 4 is all about honeybees. So today we will study on topic all about honeybees. Before starting the video, I want to say you I hope so that your school will get reopened on 14th of February. Okay, your school will get reopened hopefully on 14th February. Okay, so be prepared for the coming to school. Okay, now let's start the topic. See here, topic 4 all about honeybees. Here, honeybees are social insects. They collect nectars and pollen from flowers and produce wax and honey. Honeybees live in large colonies. Their colonies include a queen, drones and workers. So students, all of you know honeybees. In Hindi we say madhumakhi. Okay, मधुमक्खी. सो हनीबीज आर सोशल इंसेक्ट. हनीबीज जो है जो हमारी वो एक सोशल इंसेक्ट्स है. क्यों है? बिकॉज हनीबीज कलेक्ट द नेक्टर्स एंड पोलन्स. हियर इट इज अ सोशल इंसेक्ट्स एंड हनीबीज कलेक्ट नेक्टर्स एंड पोलन्स. From where they collect the nectars and pollens? They collect the nectars and pollens from flowers from flowers and produce wax and honey. With the help of nectars and pollens we can produce wax and honey. Honeybees live in large colonies. You know, have you seen honeybees are living in large colonies? In Hindi we say honeybees, that मधुमक्खी. आपने देखा होगा मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं वो एक पूरे ग्रुप में एक साथ में रहते हैं. तो सो दैट्स व्हाई वी से दैट honeybees live in a large colonies. Their colonies include queen, drones and workers. और उनके कॉलोनीज में कौन कौन से लोग रहते हैं? उनके कॉलोनीज में एक रानी होती है, डेट इज क्वीन, फिर ड्रोन्स होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं? वर्कर्स. तो 3 टाइप्स ऑफ honeybees are live. Okay, so let's start. We will read something more about the honeybees that we will don't know. Just we will go through it. See here, honeybees have 6 legs, 5 eyes, 2 pairs of wings and a nectar pouch and a stomach. See here, I will show you. Honeybees have a क्या आपको पता है? नो वन नो डेट honeybees के पास कितने लेग्स होते हैं? honeybees के पास 6 legs होते हैं. How many legs honeybees have? Honeybees have 6 legs, 5 eyes, 2 pairs of wings and a nectar pouch and a stomach. These are the parts of the honeybees. So it is the body parts of honeybees. एक honeybees, एक मधुमक्खी के 6 पैर होते हैं. उनके पास 5 eyes होती हैं और 2 pairs of wings होते हैं और एक nectar pouch होता है जहाँ पे वो पोलन और नेक्टर को कलेक्ट करते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. See here, next one is a honeybees visit 50 to 100 flowers for collecting nectar and pollens during a trip. Okay, I repeat again. A honeybee visits 50 to 100 flowers. honeybees यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं जब वो अपने ग्रुप में एक साथ में निकलती हैं तो वो लोग एक हनी बी जो होता है, एक मधुमक्खी जो है 50 to 100 फ्लावर्स के ऊपर बैठती है और वहाँ से वो क्या करती है? हनी बी कलेक्टिंग द नेक्टर्स एंड पोलन्स, और वहाँ से वो नेक्टर्स एंड पोलन्स कलेक्ट करते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. This is the work we are see here.
bees can fly for up to 6 miles and as fast as 15 miles as per hour and beat their wings 200 times per second. 200 times per second. See here. Bees can fly for up to 6 miles. मधुमक्खी जो है, बीज जो है क्या है, 6 माइल्स की ऊंचाई तक उड़ सकती है और एंड एज फास्ट एज 15 माइल्स पर आवर, और 1 घंटे में लगभग वो 50 माइल्स तक, इतना फास्ट है कि वो 15 माइल्स तक क्या हो सकता है, पर आवर में उड़ सकती है. एंड बीट देयर विंग्स 200 टाइम्स पर सेकेंड, और 1 सेकेंड के अंदर में 200 बार 200 टाइम्स वो अपने मधुमक्खी जो है, बीज जो है, अपने विंग्स को, अपने पंख को फड़फड़ाती है. सो आई थिंक दिस मच क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. सी हियर. सो नेक्स्ट वन इज द क्वीन बी can live up to 5 years. The queen bee can live up to 5 years. मैंने अभी आपको बताया मधुमक्खियाँ जो है, जितनी भी हनी बीज होती हैं वो एक ग्रुप में रहती हैं. ओके, जिसको कहा, उनको क्या कहा जाता है, हिंदी में हम कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता, बट इंग्लिश बीज से कॉलोनी. ओके, कॉलोनी ऑफ द बीज. उनके बीच में एक उनकी रानी होती है, एक क्वीन होती है जो कम से कम 5 साल तक जीती है. जो मधुमक्खियों की रानी होती है, द क्वीन ऑफ द बी कैन लिव्स अप टू 5 years एंड द वर्कर्स लिव फॉर अबाउट 6 weeks. और जो वर्कर्स होते हैं दे आर लिविंग अबाउट ओनली फॉर 6 weeks एंड डू ऑल द वर्क्स, और सारे वर्क जो है वर्कर्स करते हैं. मीन्स क्वीन जो होती है हनी बीज की, जो क्वींस होती है, क्वीन बी होती है, वो 5 years सर्वाइव करती है. और जो वर्कर बीज होते हैं, वर्कर बीज जो है दे आर लिव ओनली अबाउट 6 weeks. वो 6 weeks तक सर्वाइव करते हैं और सारे वर्क्स वो करते हैं. जो वर्कर बीज होते हैं वही लोग सारे वर्क करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. सी, नेक्स्ट वन इज each colony of honeybees has a unique order for members identification. Okay, see here. हर एक कॉलोनी का, ईच कॉलोनी ऑफ हनी बीज, हर एक कॉलोनी के जो हनी बीज के जो जितनी भी छत्ते होते हैं, जितनी भी कॉलोनीज होते हैं, उनका एक यूनिक ऑर्डर्स होता है, ऑफ एक मेंबर्स होता है जो उनका तो कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन करता है. ओके, नाउ कम, आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट. The honey bees is the only insect that produce honey eaten by man. Means honey bees ही एक ऐसी बीज है, ये मधुमक्खी जो एक ऐसी मक्खी है, वही एक ऐसा इंसेक्ट है जो ह्यूमन्स को खाने के लिए, मनुष्यों को खाने के लिए हनी प्रोवाइड करती है. द हनी बी इज ओनली द इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस हनी ईटन बाय मैन. मीन्स सारे इंसेक्ट्स में हनी बीज ही एक ऐसा इंसेक्ट्स है, ऐसा कीटाणु है जो ह्यूमन बींग्स को खाने की, ह्यूमन बींग को हनी प्रोड्यूस करता है जिसे मैन खा सकते हैं, जिसे ह्यूमन बींग्स खा सकते हैं. ओके, ओनली द हनी बीज इज द ओनली इंसेक्ट दैट प्रोड्यूसेस हनी ईटन बाय मैन. ओके, so some few we will read. See here, next one is honey is incredibly healthy and includes enzymes, vitamins and minerals. The honey which are getting we are getting from the honey bees, it's very incredible. It is so healthy. It includes enzymes, vitamins and minerals also. जो हनीज हमें हनी बीज से मिलते हैं, वो हनी जो है, वो हनी जो है काफ़ी हेल्दी होता है, उसमें एंजाइम्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं. See here, next is a bee makes only 1/12 of teaspoons of honey in its lifetime. एक मधुमक्खी जो है
क्या होता है, 12 भाग का केवल एक हिस्सा, ओनली 1 टीस्पून जो है हनी वो अपने पूरे लाइफ टाइम में निकालती है, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में निकालती है। नेक्स्ट इज bees have been producing honey for at least 150 million years। मीन्स स्टूडेंट्स जो bees जो है have been producing honeys for at least 150 million years, मतलब कि जो bees हैं वो लगभग 150 million years से वो हमारे लिए हनी प्रोड्यूस कर रही हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज honey bees communicate। See here, honey bees communicate। See here, honey bees communicate with one another by dancing। मीन्स हनी बीज जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो एक दूसरे से कैसे बात करती हैं, यू नो, ये लोग जब मधुमक्खियाँ जब हनी बीज जब एक दूसरे से बात करना होता है तो वो डांस करके बात करती हैं। कैसे बात करती हैं, दे डांस करके। सो हनी बीज कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय डांसिंग। अ colony of bee can contain between 20,000 and 60,000 bees। एक कॉलोनी जो होती है मधुमक्खियों की वो लगभग उसमें कितनी मधुमक्खियाँ होती हैं, 20,000 से लेके 60,000 तक की मधुमक्खियाँ जो है एक बीज में, एक कॉलोनीज में, मीन्स की एक छत्ते में होती हैं। बट ओनली 1 क्वीन बी एंड अदर वर्कर हनीज। लेकिन उसमें केवल एक ही रानी होती है, बाकी सारे हनी बीज क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। एक कॉलोनी की केवल एक रानी होती है, बाकी सारे जो हनी बीज होते हैं वो सारे के सारे वर्कर होते हैं। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक 4 ऑल अबाउट हनी बीज। Now come to the next topic, that is topic 8, desert plants। Topic 8 is, so topic 8 is desert plants। Okay, topic 8 is desert plants। In desert plants here, desert is the driest part of our earth। desert जो है हमारे अर्थ का सबसे ड्राई एरिया, सबसे ड्राइएस्ट पार्ट है। Despite that, some plants are adapted to the arid climate। उसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इस तरह के ड्राइएस्ट अराइड क्लाइमेट में होते हैं। लेट्स नो अबाउट सम डेजर्ट प्लांट्स। हम उसी कुछ सम जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज व्हाट, सी हियर, द फर्स्ट वन इज कैक्टस। द फर्स्ट वन इज cactus। Cactus is commonly seen plants in desert। Cactus is commonly seen plant in desert। आपने देखा होगा कैक्टस जो होता है एक कॉमनली बहुत ही कॉमन प्लांट्स है जो कि डेजर्ट में देखा जाता है। मीन्स मोस्टली कैक्टस जो है डेजर्ट एरिया में ही होता है। स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर सर्वाइविंग इन एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई हैबिटेट्स। कैक्टस प्लांट जो होता है वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर प्लांट्स में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर्स को स्टोर करके रखता है, जिससे वो बहुत ईजिली एक एक्सट्रीम और हार्ड ड्राई क्लाइमेट में भी सर्वाइव करता है। देयर आर अराउंड 2000 डिफरेंट स्पेसीज ऑफ कैक्टस। मीन्स अगर देखा जाए तो लगभग 200 डिफरेंट स्पेसीज ऑफ कैक्टस दैट डिफर्स इन साइज, शेप, कलर एंड टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। कैक्टस जो है कैक्टस के जो प्लांट्स होते हैं वो 200 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लगभग 2000 डिफरेंट स्पेसीज ऑफ कैक्टस होते हैं जो कि सारे के सारे जितने भी 2000 डिफरेंट स्पेसीज होते हैं वो सब एक दूसरे से साइज, शेप, कलर और उनके टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में हर चीज़ में वो अलग होते हैं, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं होता है। ओके, सो कैक्टस इज अराउंड ऑफ what? Here cactus are around 2000 different species. Okay, 2000 different species, and each and every all are differs in size, shape, colors and the types of habitats. Now come to the next, that is ghost plant. That is what? Ghost plant. Ghost plant is a cold hardy
Ghost plant is a cold, hardy, succulent plants with pale grey or white leaves on sprawling stem. During spring they glow, bring yellow flowers. Okay, here आपको ये देखने मिलेगा. दिस इज द घोस्ट प्लांट्स. घोस्ट प्लांट जो है कोल्ड हार्डी सुकुलेंट प्लांट्स है, जो कि उसके जो पेल्स होते हैं वो ग्रे कलर के या फिर विथलिस लीव्स, और उसके लीव्स जो होते हैं विथलिस होते हैं, स्पेकलिंग टीम्स होते हैं, और इसमें एक फ्लावर होता है जो येलो कलर का फ्लावर ब्लूम होता है. कौन से कलर का फ्लावर ग्रो होता है? घोस्ट प्लांट्स में येलो कलर का फ्लावर ग्लो होता है, और ये फ्लावर जो है स्प्रिंग सीजन में ग्रो करते हैं. इट्स ग्रो इन स्प्रिंग सीजन. सो आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ओकोटिलो. ओकोटिलो. So ocotillo is also a desert plant. Ocotillo is also a desert plant. See here, this is the ocotillo plant. Ocotillo is also a desert plant. It has large green color spiny sticks. This is the ocotillo plants. Can you able to see here? This is the ocotillo plant. So this is the ocotillo plant. Okay, it has large green color spiny sticks. Okay, it has large green color spiny sticks. Here ocotilla is also a desert plant. It has large green color spiny sticks. Means ocotilla भी एक तरह का desert plants है. उसके जो sticks होते हैं वो लंबे लंबे और ग्रीन कलर के कांटेदार होते हैं. ओके, इट कैन रीच हाइट ऑफ अप टू 220 फीट्स. ओकोटिला की हाइट जो है लगभग 20 फीट्स की हाइट तक में वो ग्रो होते हैं. दिस प्लांट स्टार्ट्स टू ब्लूम इन मार्च टिल जून. और ये प्लांट जो है मार्च मंथ से ब्लूम होना स्टार्ट करते हैं और जून मंथ तक ब्लूम होते हैं. विथ रेड ट्यूब स्टाइल फ्लावर. रेड कलर के ट्यूब स्टाइल फ्लावर्स इसमें होते हैं. जस्ट यू कैन सी हियर, इस तरह के फ्लावर्स वहाँ पे होते हैं. After that come to the next one, that is Joshua tree. That is what? Joshua tree. See, this is the Joshua tree. Yes, Joshua tree is a rare evergreen plant that grow only in the Mojave Desert. जोशुआ ट्री जो है बहुत ही रेयर और बहुत ही कम कहीं भी मिलता है, और ये एवरग्रीन प्लांट्स है, और ज़्यादातर इस जोशुआ ट्री जो है मोजावे डिजर्ट में पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है? मोजावे डिजर्ट्स में पाया जाता है. दिस ट्री इनहेबिटेट्स इन डेजर्ट, प्लेन्स, स्लोप्स, rides and flat topped hills on the altitude between 1.300 to 5.900 feet. इस तरह के ट्रीज के हैबिटेट जो है ये लगभग या तो प्लेन डेजर्ट में या फिर स्लोपी एरिया में या फिर रीड्स या फिर फ्लैट टॉप्ड हिल्स पर ही पाए जाते हैं. ये जो है लगभग इनका जो एल्टीट्यूड होता है वो बिटवीन 1.30 टू 5.90 फीट के बीच में ही होता है. इनकी जो लंबा एल्टीट्यूड्स होते हैं, लंबाई होते हैं. इट ग्रोज ओनली 2 to 3 इंचेस पर ईयर. और हर साल ये केवल 2 से 3 इंच ही बढ़ते हैं. ओके, एंड मैच्योर्स आफ्टर 60 ईयर्स. और कम से कम उसको इस प्लांट को मैच्योर होने में, कंप्लीट एक प्लांट रेडी होने में 60 ईयर्स. It takes 60 years to mature. Okay, और जब वो 60 साल के बाद ही ये प्लांट जो है मेच्योर होते हैं. After that come to the next, that is Mojave yucca. That is what? Mojave yucca. So Mojave yucca is also called the Spanish dagger. Mojave yucca Yucca slictigera is also called the Spanish डेगर. मोहावे यूका को स्पेनिश डेगर भी कहा जाता है. दिस एवरग्रीन श्रब्स ग्रो टू द हाइट ऑफ 60 फीट. ये एक तरह का श्रब प्लांट्स है. ये एक तरह का क्या है? श्रब प्लांट्स है. ये प्लांट्स भी एवरग्रीन प्लांट्स है जिसकी हाइट 16 फीट तक होती है. मीन्स अप टू 16 फीट की हाइट तक ये प्लांट ग्रो करता है.
has a few upright branches and bayonet like leaves from 2 to 4 feet long. और उसके बाद इसके क्या होते हैं, कुछ ऐसे अपराइट इसके ऊपर, इसमें प्लांट में एकदम टॉप के ऊपर की तरफ इसमें ब्रांचेस होते हैं और वो जो लीव्स उसके होते हैं वो लगभग 2 to 4 फीट की जो है लंबा होता है, लॉन्ग होते हैं. इट्स फ्लावर ब्लूम्स इन अगस्त एंड सितंबर. और इस प्लांट का जो फ्लावर है वो अगस्त एंड सितंबर मंथ में ब्लूम होता है. किस मंथ में ब्लूम होता है? अगस्त एंड सितंबर मंथ में इसका फ्लावर जो है ब्लूम होता है. एंड फ्रूट्स इन लेट समर. और जो इसके फ्रूट्स होते हैं वो एकदम लास्ट समर में होते हैं. सो बाय दिस स्टूडेंट्स वी हैव completed the explanation of topic 8 also. So please students go through on it. I will send you the exercise video, exercise of PDF. So please write it in your fair copy. Bye. We will meet hopefully on 14th in the school now.